Students of 8th class, I hope that you all will be alright. Let's start with the name of Allah, who is the perfect and giver of peace. In our last lecture, we have been discussed Clever Mirchu, the first half reading, and today we will discuss the second half reading of Clever Mirchu. Before discussing the reading of the lesson, we will have to discuss the difficult words meaning of the lesson. The difficult words meanings of the lesson are woodcutter, लकड़हारा, growing, बड़ा है, hungry, भूखे, the youngest, सबसे छोटा, caste, डाला, anxiety, परेशानी, indeed, दरअसल, pepper, मिर्च, famine, कहद, spread, फैल गया, cried, चीखी, brought up, परवरिश पाते. Now we will start our reading. Students, open your book page number 40. On your book page number 40, we will start from paragraph number 8. I will cut down the small trees. मैं छोटे दरख्तों को काटूंगा. Said the woodcutter. लकड़हारे ने कहा. And you boys must collect all the branches. और तुम लड़कों सारी इसकी जो branches, उसकी जो शाखें, उसको इकट्ठा कर लो. And then tie them into small bundles. और इन्हें छोटे छोटे गट्ठों में बांध दो. It is going to be hard work. ये थोड़ा सख्त काम होगा. With that he cut the trees with his axe. वो अपने कुल्हाड़े लकड़हारे जो था वो अपने कुल्हाड़े के साथ लकड़ियों को काट रहा था. And set his 7 sons to work. और उसने अपने 7 बेटों को काम पर लगा दिया. While the boys were gathering as much sticks as they could. लिहाजा लड़कों से जितनी ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी जमा हो सकती थी उन्होंने की. The woodcutter nodded to his wife and the two of them just sneaked away. लकड़हारे ने अपनी बीवी को इशारा किया और वहाँ से वो चुपके से निकल गए. The boys felt a kind of shudder. लिहाजा लड़कों ने थोड़ा खौफ महसूस किया. They began to shout. और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया. And called for their father. और अपने बाप को बुलाना शुरू किया. Thinking that he might be playing some kind of trick with them. और ये सोचने लगे कि शायद उनके साथ कोई चाल चल रहा है. When, however, लिहाजा जब he did not appear to for quite some time, they really felt frightened. लिहाजा जब कुछ देर के लिए उनका बाप नमूदार ना हुआ, सामने ना आया, तो वो खौफजदा हो गए. And began to cry bitterly. और बहुत ज़्यादा शिद्दत से रोने लगे. Then the clever Mirchu said, तब होशियार मिर्चू ने कहा, Don't worry boys. लड़कों तुम लोग परेशान ना हो. I know the way home. मैं घर का रास्ता जानता हूँ. All we have to do is to follow the trail of the white stones. हमें यहाँ पर रखे हुए जो सफ़ेद कलर के पत्थर हैं, इन सफ़ेद कलर के पत्थरों के निशानों पर चलते जाएंगे. Father isn't going to come. अब जो हमारे वाले साहब हैं वो आने वाले नहीं. Mirchu's brothers, however, doubted what he said. मिर्चू के जो भाई थे उनको शक हुआ कि ये क्या कह रहा है. All this is he repeated what their father had said the night before. तब उसने वो सब कुछ बताया जो उसका अब्बू जो थे, उसके बाप जो था वो रात को बता रहा था. And told them how he had filled his pockets with stones. उन्होंने ये बताया कि उसने कैसे पत्थरों से अपनी जेबों को भर लिया था. And dropped them one by one on the way. और उन्हें रास्ते पर एक एक करके फेंकता चला गया. So Mirchu led his brothers through the deep forest. लिहाजा मिर्चू ने अपने भाइयों की जो जंगल में बल खाते हुए रास्ते से अपने भाइयों की मदद की. So Mirchu led his brothers through the deep forest along the winding paths until they reached the cottage. यहाँ तक उसकी मदद की जब तक वो झोंपड़ी में पहुँच नहीं गए. Perhaps we are not going to be welcomed. लिहाजा हम खुशामदीद ना किया जाएगा. Mirchu said softly. मिर्चू ने बड़े आराम से कहा. Let us wait outside the cottage for a while. हमें झोंपड़ी के बाहर कुछ देर के लिए इंतज़ार करना चाहिए. And see और देखना चाहिए. If we can't hear what father and mother are talking about. कि और हमें अब्बा और मम्मी किस बारे में बातें कर रहे हैं ये सुन लेना चाहिए. When the woodcutter and his wife arrived home early, जब
लकड़हारा और उसकी बीवी जल्दी घर पहुंच गए। दैट डे दे हैड फाउंड 10 सिल्वर कॉइन्स वेटिंग फॉर देम। तो उन्होंने रास्ते पर 10 चांदी के सिक्के पाए। दिस वॉज अ पेमेंट ऑफ डेब्ट दैट दे हैड लॉन्ग फॉरगेटन अबाउट। और ये इस चीज़ का 10 सिक्के जो थे वो एक कर्ज की अदायगी थी जिसके बारे में वो बहुत अरसे से भूल चुके थे। At the sight of so much money, the woodcutter's wife wept with joy. इतनी बड़ी रकम पर न पड़ते ही लकड़हारे की बीवी खुशी से रोने लगी। But when she remembered that she would never see her boys again, लेकिन जब उसे याद आया वो अपने बच्चों को वापस कभी नहीं देख सकेगी। ऑल हर जॉय वैनिश, तो उसकी तमाम खुशी ख़त्म हो गई। एंड शी बिगैन टू सॉब, और वो रोना शुरू हो गई। व्हाट यूज़ वाज द मनी हर नाउ, अब उसके पैसों का वो क्या करेगी। शी थॉट, वो सोचती है। माई सन्स, माई पुअर लिटल सन्स, और वो रोती हुई कहती है मेरे बच्चे, मेरे छोटे से गरीब बच्चे। शी एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, वो बड़ी दुख के साथ कहती है what would I not give to have you safely back home। अब वो सोचती है कि अब मैं उन्हें घर वापस कैसे हिफाजत के साथ ना ला सकूँगी। Perhaps by now they might have been eaten by wolves, हो सकता है कि भेड़िए उन्हें खा चुके हों। This was all मिर्चू wanted to hear, जब ये सब कुछ मिर्चू सुनना चाहता था। He pushed the door open and ran to his mother। वो दरवाजे को धक्का देकर दरवाज़ा खोलता और अपनी माँ के पास दौड़ गया। His brother followed him too। उसके भाई भी उसके पीछे दे लिए। Don't cry mother, अम्मी जान रोए नहीं। We are all here, हम सब यहाँ हैं। All safe and sound, तमाम सब बखैर आफियत। What joy and happiness there was in the woodcutter's cottage। उस रात लकड़हारे की झोपड़ी में किस कदर खुशी थी। दैट नाइट एंड व्हाट अ फीस्ट दे ऑल हैड एज दे सैट अराउंड द टेबल। और वो सारे मेज़ के गिर्द बैठे उन्होंने कैसी अच्छी ज़ियाफ़त की, अच्छा खाना खाया। द वुडकटर, हिज वाइफ एंड ऑल देयर सन्स लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लकड़हारा, उसकी बीवी और उसके बच्चे अब इसके बाद खुशी से रहने लगे। वेल डन क्लेवर मिर्चू, नन्हे मिर्चू, होशियार मिर्चू, बहुत अच्छा किया। नाउ वी विल डिस्कस ग्लोसरी वर्ड्स। एंग्जाइटी, वरी। ऑन एंड, एट अ स्ट्रॉ। लॉन्सम, lonely। बिफोर लॉन्ग, अर्ली और आफ्टर अ शॉर्ट while। वोर ऑन, पास्ट ग्रेटली gradually। ट्वाइलाइट, फेड, half light before sunrise or after sunset। snake, to go away quietly। trial, the line or the path। vanish, disappear। sob, to cry noisily। feast, a splendid meal। famine, extreme shortage of food in rain। hearth, a brick, stone to fireplace or oven। nodded, to move the head up and down as to indicate agreement। shudder, to shake with fear। that, a sum of money on to somebody। वाइफ wept with joy। इतनी बड़ी रकम पर न पड़ते ही लकड़हारे की बीवी खुशी से रोने लगी। But when she remembered that she would never see her boys again, लेकिन जब उसे याद आया वो अपने बच्चों को वापस कभी नहीं देख सकेगी। ऑल हर जॉय वैनिश, तो उसकी तमाम खुशी ख़त्म हो गई। एंड शी बिगैन टू सॉब, और वो रोना शुरू हो गई। व्हाट यूज़ वाज द मनी हर नाउ, अब उसके पैसों का वो क्या करेगी। शी थॉट, वो सोचती है। माई सन्स, माई पुअर लिटल सन्स, और वो रोती हुई कहती है मेरे बच्चे, मेरे छोटे से गरीब बच्चे। शी एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, वो बड़ी दुख के साथ कहती है what would I not give to have you safely back home। अब वो सोचती है कि अब मैं उन्हें घर वापस कैसे हिफाजत के साथ ना ला सकूँगी। Perhaps by now they might have been eaten by wolves, हो सकता है कि भेड़िए उन्हें खा चुके हों। This was all मिर्चू wanted to hear, जब ये सब कुछ मिर्चू सुनना चाहता था। He pushed the door open and ran to his mother। वो दरवाजे को धक्का देकर दरवाज़ा खोलता और अपनी माँ के पास दौड़ गया। His brother followed him too। उसके भाई भी उसके पीछे दे लिए। Don't cry mother, अम्मी जान रोए नहीं।
वी आर ऑल हेयर, हम सब यहाँ हैं, ऑल सेफ एंड साउंड, तमाम सब बखैर आफियत। वट जॉय एंड हैप्पीनेस देयर वाज इन द वुड कटर्स कॉटेज, उस रात लकड़हारे की झोपड़ी में किस कदर खुशी थी। दैट नाइट एंड वट अ फीस्ट दे ऑल हैड एज दे सैट अराउंड द टेबल, और वो सारे मेज़ के गिर्द बैठे उन्होंने कैसी अच्छी ज़ियाफ़त की, अच्छा खाना खाया। द woodcutter, his wife and all their sons lived happily ever after, लकड़हारा, उसकी बीवी और उसके बच्चे अब इसके बाद खुशी से रहने लगे। वेल डन क्लेवर मिर्चू, नन्हे मिर्चू, होशियार मिर्चू, बहुत अच्छा किया। Now we will discuss glossary words. Anxiety, worry. On end, at a straw. Lonesome, lonely. Before long, early or after a short while. Wore on, past gradually. Twilight, faint, half light before sunrise or after sunset. Snake, to go away quietly. Trail, the line or the path. Vanish, disappear. Sob, to cry noisily. Feast, a splendid meal. Famine, extreme shortage of food in rain. Hearth, a brick, stone to fireplace or oven. Nodded, to move the head up and down as to indicate agreement. Shudder, to shake with fear. Debt, a sum of money on to some body.